یہ اس دور کی بات ہے جب زمین پر صرف انسان نہیں بستے تھے بلکہ رحمت بھی چلتی تھی، جب مدینہ کی فضا میں صرف آذان کی آواز نہیں گونجتی تھی بلکہ سکون بھی اترتا تھا، جب گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی آہٹ دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دیواروں پر پڑتا تو دیواریں بھی خود کو محفوظ سمجھتیں۔ یہ قصہ نہ کسی جنگ کا ہے نہ کسی فتح کا، یہ قصہ ہے ایک ماں کا جس کی زبان انسانوں جیسی نہ تھی مگر دل بالکل ماں جیسا تھا۔ ذرا یہ سوچو، اگر تمہارا بچہ بھوک سے بلک رہا ہو اور تمہیں رسیوں میں جکڑ دیا جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ چند لمحوں بعد تمہاری جان لے لی جائے گی تو اس وقت تم کس در پر فریاد کرو گے؟ اسی لمحے ایک ہرن انسانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ مدینہ کی صبح ہمیشہ کی طرح روشن تھی، سورج کی کرنیں ریت پر پڑ کر چمک پیدا کر رہی تھیں، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں سکون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ چہرہ مبارک پر وہی نور، وہی وقار، وہی شفقت۔ ایسا لگتا تھا جیسے فضا بھی آہستہ بول رہی ہو کہ کہیں اس سکون کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ اچانک ہنگامہ، اسی سکون میں اچانک قدموں کی آوازیں آئیں۔ چند لوگ تیزی سے آ رہے تھے، ان کے درمیان ایک جانور تھا۔ وہ جانور ہرن تھا، اس کے پاؤں موٹی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی، سانس بے ترتیب اور دل جنگل میں اٹکا ہوا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتا تھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ ماں کی بے بسی، یہ کوئی عام ہرن نہ تھا، یہ ماں تھی جس کے ننھے بچے جھاڑیوں کے درمیان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بچے نہ جانتے تھے کہ ان کی ماں رسیوں میں جکڑی جا چکی ہے، نہ جانتے تھے کہ ان کی بھوک کسی کے نیزے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کا حکم، زبان کا مل جانا۔ جب وہ ہرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو ایک عجیب منظر پیش آیا۔ اللہ کے حکم سے اس بے زبان کو زبان عطا ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، میں ایک ماں ہوں، مجھے قتل نہ کیا جائے، میرے 2 ننھے بچے ہیں، وہ جنگل میں بھوک سے بلک رہے ہوں گے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ الفاظ ہوا میں تحلیل نہ ہوئے، یہ سیدھے دلوں میں اتر گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر اثر، صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہرے بدل گئے، کسی نے نظریں جھکا لیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی معجزہ ہوا ہو، مگر یہ معجزہ دلوں کو ہلا دینے والا تھا۔ ماں کی درخواست، ہرن نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤں گی، اگر میں نہ آئی تو قیامت کے دن آپ میرے گواہ ہوں۔ یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں تھا مگر وزن پہاڑوں سے زیادہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جلدی نہ کی، وہ خاموش رہے جیسے اس ماں کے دل کی دھڑکن سن رہے ہوں۔ پھر آہستہ سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ واپس آئے گی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب ماں جنگل کی طرف دوڑی اور مدینہ خاموش ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فضا میں ٹھہر گئے تھے، اسے چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایسا اعلان تھا جس نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک امانت قائم کر دی تھی۔ رسیوں کا کھلنا، شکاریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ کسی نے آہستہ سے ہرن کے پاؤں کی رسی کھولی، رسی زمین پر گری اور اسی لمحے ایک ماں آزاد ہو گئی۔ وہ ہرن چند لمحے کھڑا رہا، ایسا لگا جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، کیا واقعی میں جا سکتی ہوں؟ شکریہ جو لفظوں سے ماورا تھا۔ ہرن نے آہستہ آہستہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا،
आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं में ऐसा शुक्र जो जबान का मोहताज नहीं होता। वो चंद कदम आगे बढ़ा, सर झुकाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कह रहा हो, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर अचानक वो मुड़ा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मां की दौड़, वो दौड़ सिर्फ जिस्म की नहीं थी, वो दौड़ थी भूख की तरफ, प्यास की तरफ, नन्हे बच्चों की तरफ, मां की जिम्मेदारी की तरफ। हर कदम पर उसके दिल में एक ही ख्याल था, मेरे बच्चे, मैं आ रही हूं। मदीना में इंतजार। हिरन की पुश्त आंखों से ओझल हुई तो मदीना की फजा बदल गई। वो जगह जहां अभी तक रहमत की नरमी थी, अब इम्तिहान की खामोशी में बदल गई। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम खामोश बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ दिल बोल रहे थे। शिकारियों के दिल में सवाल। कुछ शिकारी आपस में सरगोशियां करने लगे, क्या वाकई वो वापस आएगी? ये तो जानवर है, अगर ना आई तो? और अगर ना आई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमानत? ये सवाल उनके दिलों में आग की तरह जल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुकून, मगर रहमत आलम बिल्कुल पुरसुकून थे। न चेहरे पर बेचैनी, न आंखों में तरद्दुद। ऐसा लग रहा था जैसे वो देख रहे हों वो मंजर जो दूसरों को नजर नहीं आ रहा था। वक्त गुजरता गया, सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर चढ़ता गया। रेत गर्म होने लगी, साये सिमटने लगे। इंतजार तवील होता गया। किसी ने दिल ही दिल में सोचा, शायद वो ना आए। कुछ दिलों की कमजोरी। एक शिकारी अपनी जगह से उठा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर वो वापस ना आई तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले नरमी से देखा और सिर्फ इतना फरमाया, वो आएगी। बस, कोई दलील नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ यकीन। उफक पर एक साया। अचानक किसी ने दूर इशारा किया, देखो। सबकी नजरें जंगल की तरफ उठ गईं। उफक पर एक साया नमूदार हुआ, धुंधला, लरसता हुआ, मगर तेजी से करीब आता हुआ। वादे की शक्ल वही हिरन था, सांस फूली हुई, जिस्म थका हुआ, मगर कदम मजबूत। वो दौड़ता हुआ आया और आकर रसूल खुदा के कदमों में गिर पड़ा। वादे के अल्फाज, हिरन की आवाज अब भी कांप रही थी, या रसूल अल्लाह, मैंने वादा पूरा कर दिया। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाई हूं, वो अब पुरसुकून है। अब मैं हाजिर हूं, जो हुक्म हो। ये सुनना था कि फजा फट गई। सुहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की आंखों से आंखें भर आईं। किसी ने रोना न चाहा, मगर आंसू खुद बहने लगे। शिकारियों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनके सामने एक जानवर ने वो काम कर दिखाया था जो बहुत से इंसान नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन की तरफ देखा। वो मुस्कुराहट जो रहमत की पहचान थी। फरमाया, क्या तुम्हारे बच्चे मुतमईन हैं? हिरन ने जवाब दिया, जी हां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसला जो तारीख बन गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अब बताओ, क्या तुम ऐसे जानवर को कत्ल करोगे जिसने वादा निभाया? यह सवाल सिर्फ शिकारियों से नहीं था, ये इंसानियत से था। जब पत्थर दिल पिघल गए और रहमत ने फैसला सुना दिया, फजा में एक अजीब खामोशी छा गई थी। ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा भारी होती है। हर आंख हिरन पर जमी हुई थी और हर दिल अपने अंदर एक तूफान महसूस कर रहा था। वो हिरन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा था। सांस अब भी बेतरतीब थी, मगर आंखों में सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ वादा पूरा करने के बाद आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल ने शिकारियों के दिलों में जलजला बर्पा कर दिया। क्या तुम ऐसे जानवर को कत्ल करोगे जिसने वादा निभाया? ये तीर की तरह उनके सीनों में पैवस्त हो गया।
वही हाथ जो थोड़ी देर पहले रस्सी थामे हुए थे अब लरज रहे थे। वही आंखें जो शिकार को सिर्फ एक जिस्म समझती थीं अब मां को देख रही थीं। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ये मंजर देख रहे थे। वो दिल जो पहले ही नरम थे अब और भी नरम हो गए। ये सिर्फ एक जानवर की जान बचने का वाकया न था, ये इंसान के अंदर इंसान जिंदा होने का लम्हा था। नबी करीम ने हिरन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली, फिर शिकारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में न गुस्सा था न मलामत, सिर्फ सच था। फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, मगर ताकत जुल्म के लिए नहीं, रहम के लिए दी है। फिर फरमाया, जो शख्स किसी जानदार पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाता। ये अल्फाज हुआ में तहलील नहीं हुए, ये दिलों में नक्श हो गए। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार हिरन का दिल कर रहा था, और शायद जमीन भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिरन आजाद है, आज के बाद कोई उस पर हाथ नहीं उठाएगा। यह ऐलान सिर्फ एक जानवर के लिए ना था, यह रहमत की बादशाहत का ऐलान था। यह सिर्फ एक जानवर की जान बचने का वाकया न था, यह इंसान के अंदर इंसान जिंदा होने का लम्हा था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात। नबी करीम ने हिरन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली, फिर शिकारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में न गुस्सा था न मलामत, सिर्फ सच था। फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, मगर ताकत जुल्म के लिए नहीं, रहम के लिए दी है। फिर फरमाया, जो शख्स किसी जानदार पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाता। ये अल्फाज हुआ में तहलील नहीं हुए, ये दिलों में नक्श हो गए। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार हिरन का दिल कर रहा था, और शायद जमीन भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिरन आजाद है, आज के बाद कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ऐलान सिर्फ एक जानवर के लिए न था, ये रहमत की बादशाहत का ऐलान था। हिरन कुछ लम्हे साकित रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर जमीन की तरफ झुका दिया। यूं महसूस हुआ जैसे वो सजदा कर रहा हो, सजदा शुक्र। वो शुक्र जो जबान से अदा ना हो सके तो जिस्म से अदा हो जाता है। हिरन खड़ा हुआ, चंद कदम चला, फिर रुक गया, पलटा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो कहना चाहता हो, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, आपने मेरे बच्चों की मां बचाई है। फिर वो जंगल की तरफ बढ़ गया। हर चंद कदम बाद पलट कर देखता रहा। जंगल ने अपनी आगोश खोल दी। झाड़ियों के दरमियान नन्हे हिरन अपनी मां की तरफ दौड़े होंगे। वो बच्चे नहीं जानते थे कि उनकी मां किस इम्तिहान से गुजरी है, मगर कुदरत जानती थी और आसमान जानता था। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में उतरता सबक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया, मां की दुआ, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की, अल्लाह के यहां सुनी जाती है। ये जुमला सुनहरी हुरूफ से दिलों पर लिख दिया गया। यह किस्सा सिर्फ तारीख का वरक नहीं, यह आज के इंसान से सवाल है। क्या हम ताकत पाकर रहम करते हैं? क्या हम वादे को अमानत समझते हैं? क्या हम कमजोर की आवाज सुनते हैं? अगर एक हिरन अपने बच्चों के लिए वापस आ सकता है, तो हम अपने वादों से क्यों भागते हैं? यह किस्सा हमें रुलाने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। यह हमें बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मस्जिदों के नबी नहीं, बल्कि दिलों के नबी हैं। अगर जानवर उनकी रहमत पहचान सकते हैं, तो हम उनके उम्मती होकर क्यों भूल जाते हैं? ऐ अल्लाह, हमें भी वो दिल अता फरमा
जो रहम जानते हों, और हमें भी वो वफा अता फरमा जो एक हिरन ने दिखाई। आमीन।